Hello students, myself Dr. Virender Dalal, Assistant Professor of Commerce at Government College Gharonda, Karnal. Students, today we start the topic of rural consumer behavior. It is the most important part of the rural marketing. When we are discussing about the rural marketing, firstly, we know about the consumer behavior of the rural people, how they behave when they go for the shopping. So we start from the consumer behavior. It is the study about the behavior shown by the rural consumer about acquisitions, consumptions and disposition of the various products. Consumer behavior of the rural markets are spread throughout the countryside. With the low income levels, lack of educations, low level of the literacy are the main feature of the rural peoples, and they are also scared to try out the new innovative products because they are using the things which are they consume or use in their daily and the routine life. Comfort or luxury items are not generally purchased by the rural customers, and we know that because they have the low income, they are more concerned about the price and more conscious about the durability of the products. So these are some basic things which they consider before going to the purchase of the products. In the rural consumer behavior, TV or other awareness programs are also very much popular in the villages, and through these media or some source of the awareness, they are generally considered for knowing more about the products. No doubt, radio, newspaper in local languages, hoardings, pamphlets which you seen surrounding are most important advertising media for getting the informations for the products. And also the promotion of the sale is done through gift and price discounts are very effective to purchase a product in the market. हम सभी जानते हैं कि 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विलेजेस में, गांव में रहती है, और रेस्ट ऑफ द 30% ऑफ द पीपल्स लिविंग इन द अर्बन एरियाज. आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं कि करीबन 6.5 लाख गांव हमारे इंडिया में बसते हैं, और यदि हरियाणा की बातें करें तो 6500 गांव हैं जो हरियाणा स्टेट के अंदर आते हैं. आज के दिन मार्केटर्स और मैन्युफैक्चरर्स टैप करना चाहते हैं रूरल मार्केटिंग्स को. सो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर इज टू इम्पोर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स
or these companies to know about the rural consumer behavior. So it is more important to know about the rural consumer behavior. Students, we start the factor influencing the buying behavior of the rural consumers. There are the four types of generally determinants, or you can say the factor of the rural consumer behavior. Start from the economic determinants, which is the more important factors which affect the behavior of the rural consumer. इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर हम पर्सनल इनकम ऑफ द फैमिली, पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, कंज्यूमर एसेट्स, परचेजिंग पावर, वैल्यू फॉर मनी, कंज्यूमर क्रेडिट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन एंड डिस्क्रिशनरी इनकम्स को इसके अंदर बेसिकली कंसीडर करते हैं। परचेजिंग पावर्स के अंदर कंसीडर करेंगे कि जो रूरल पीपल होते हैं उनकी परचेजिंग पावर अनप्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि उनकी पावर लिमिटेड होती है, क्योंकि जो इनकम सोर्स है रूरल पॉपुलेशंस में बहुत कम है, और ख़ास तौर पर वो स्मॉल पैकेज की जो आइटम्स हैं उनको प्रेफर करते हैं ख़रीदने के लिए, बिकॉज दे हैव लेस मनी टू परचेज और एक्सपेंड ऑन दीज आइटम्स। फैमिली इनकम इज आल्सो ए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। यदि आपकी फैमिली इनकम ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। जितनी भी आपकी ज़रूरत का सामान है उसके बाद आप लग्जरी आइटम्स हैं या और कंफर्ट आइटम्स हैं उनको आप खरीद सकते हैं, तो फैमिली इनकम भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कंज्यूमर एसेट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपके पास या रूरल पॉपुलेशन या रूरल पीपल्स के पास ज़्यादा कंज्यूमर आइटम्स हैं तो उससे भी वो ज़्यादा एसेट्स या ज़्यादा आइटम्स, ड्यूरेबल थिंग्स हैं, उनको आप परचेज कर सकते हो। रिच जो पीपल होते हैं वो ख़ास तौर पर न्यू जो आइटम्स हैं या जो फैशनेबल आइटम्स हैं उनको परचेज करना पसंद करते हैं। नो डाउट वैल्यू फॉर मनी भी इम्पोर्टेंट है इस केस में, कि जो मनी है उसकी जो वैल्यू है लोगों के लिए वो कितनी है। गांव के लोगों के लिए पैसा ज़्यादा वर्थ रखता है एज कंपेरिजन टू द अर्बन पर्सन्स, सो दे आर कंसिडर मोर फॉर गोइंग टू द परचेज ऑफ द आइटम्स। कंज्यूमर क्रेडिट इज आल्सो एक इम्पोर्टेंट factors, or you can say the determinants of the rural consumer। अवेलेबिलिटी कितनी है, रूरल पीपल्स को जो क्रेडिट है वो कितना प्रोवाइड कराया जा रहा है। जितना क्रेडिट ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उनके पास आपकी गुड्स परचेज करने के। यदि कोई कंपनी या कोई शॉपकीपर सराउंडिंग्स में इस तरह का क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करता है तो वहाँ पर रूरल जो पीपल हैं वो ज़्यादा आइटम्स नहीं खरीदते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी कैसी हैं? यदि आइटम्स महंगी हैं और ज़्यादा टैक्स्ड आइटम है तो उस केस में भी हम उन चीज़ों को नहीं परचेज करते हैं, क्योंकि रूरल कंज्यूमर प्राइस कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं कि जो लेस प्राइस आइटम है उनको परचेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। डिस्क्रिशनरी इनकम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। डिस्क्रिशनरी इनकम में आप उस इनकम को इंक्लूड करते हैं जो आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, बेसिक जो आपकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के बाद यदि आपके पास स्पेयर कुछ सरप्लस में कुछ पैसा बचता है तो आप दूसरी जो ड्यूरेबल थिंग्स हैं
उन चीज़ों को आप परचेज़ कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अप करने के लिए, जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, मोटरसाइकिल, फर्नीचर एट्सेट्रा। सेकंड डिटर्मिनेंट्स जिसको हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं इनको, जिसके अंदर आपकी जो फैमिली की बातें करेंगे, रेफरेंस ग्रुप की बात करेंगे, ओपिनियन लीडर हो सकता है, सोशल क्लास, कास्ट, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, रूरल बैकग्राउंड या रूरल जो पीपल हैं जॉइंट फैमिली में ज़्यादा रहते हैं, तो जब भी आप कोई डिसीजन किसी भी आइटम को परचेज करने का लेते हैं तो उसके ऊपर जो फैमिली का इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज दे टेकिंग द जॉइंट डिसीजन फॉर परचेजिंग एन ए सिंगल आइटम्स। सो फैमिली सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है रूरल पीपल्स के केस में। उसके बाद है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप्स का मतलब है आउट ऑफ योर फैमिली, सम पर्सन यू मीट every day, to your friends, to your neighbors, to your relatives, they are also affect the decision of purchasing a things. So इस केस में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके सोशल सर्कल में जो पर्सन्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। और उसके बाद आ रहा है ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर्स के अंदर वो पर्सन जिनको आप फॉलो करते हैं, जो आपके आइडियल्स हैं या जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर और आपकी चॉइस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो भी ओपिनियन लीडर्स में आते हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि जो रूरल यूथ हैं किसी भी फैमिलीज़ के अंदर, वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपकी बिहेवियर को अफेक्ट करने का। सोशल क्लास है, उसके बाद सोशल क्लासेस के अंदर कैटेगराइज इन्होंने किया हुआ है, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, और सोशल क्लास को आप डिसाइड करने के लिए उसके अंदर आपकी इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, कंजम्पशन पैटर्न, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ऑल आर डिटरमाइन योर social class. So it is important to study about the social class of the rural consumer. Next one is caste, culture. No doubt caste, culture, social customs, traditions all are equally important to decide the consumer behavior of the rural peoples. क्योंकि जिस सोसाइटीज़ में हम रहते हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पर कौन से सोशल जो कस्टम्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करते हैं, और क्या ट्रेडिशंस हैं आपकी सोसाइटीज़ में, आपकी फैमिलीज़ में, वो भी आपके बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करते हैं। थर्ड वन आ रहा है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स विच आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिसाइड the things which you are going to purchase. Motivations, what things you motivate, what things you insist to purchase a particular things. There are different needs of the people. मास्लो साइकोलॉजिस्ट हुआ जिसने ह्यूमन नीड्स को कैटेगराइज किया 5 पार्ट्स के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना कंज्यूमर बिहेवियर डिसाइड करते हैं। परसेप्शंस है सेकंड वन। परसेप्शंस के अंदर हम चीज़ों को लेते हैं कि आप किन चीज़ों को किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपका होता है वो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है, जिसके कारण आपका जो बिहेवियर है वो भी इफ़ेक्ट होता है। तो परसेप्शंस आपका जैसा होगा वो भी आपके बिहेवियर को डिसाइड करेगा बच्चों। इसके अंदर ख़ास तौर पर रूरल कंज्यूमर के लिए क्वालिटी एंड जो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का वो ख़ास तौर पर इफ़ेक्ट करता है। इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, इमेज क्या है आपके प्रोडक्ट की,
उसके अकॉर्डिंग भी आप परचेज करते हैं कोई भी आइटम्स। बहुत सारे पर्सन्स किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक आइडिया जनरेट करता है, जिसके कारण आप डिसीजन लेते हैं। वो चीज़ें भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करने में काम करती हैं। उसके बाद एटीट्यूड्स ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, इट इज़ मच इम्पोर्टेंट when you are going to purchase the product. If you have positive attitudes towards the goods, you are very comfort to purchase the things. And if you have decided once that it is not the good thing for us, so you are not ready to purchase these goods. Belief, क्या आप सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, आप कितना नॉलेज रखते हैं किसी प्रोडक्ट्स के बारे में, वो भी आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। जैसे कोई एग्जांपल हम ले, मारुति कंपनी की मारुति जो कंपनी है, उसकी जो फीचर है कि लेस कॉस्टली है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, बैटरीज़ हैं वो पावरफुल हैं, जापानीज़ टेक्नोलॉजी हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको एक पर्टिकुलर गाड़ी, मारुति की बात कर रहे हैं हम, तो मारुति की गाड़ी परचेज़ करने में कहीं ना कहीं ये विश्वास और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं वो आपके डिसीज़न को लेने में मदद करती है। पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, लाइफस्टाइल कैसा है आपका, वो भी डिसाइड करता है। पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, लाइफस्टाइल जिसमें आप रह रहे हैं, जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ें भी आपके कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। जो लर्निंग, क्या आप सीखते हैं समाज में रहकर, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या इन्फॉर्मेशन आप पोजेस की हुई है आपने, वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके डिसीज़न को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद पर्सनल डिटर्मिनेंट्स हैं, उसके अंदर हम तीन ही चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करने जा रहे हैं। एज ऑफ द कंज्यूमर्स, क्या एज है आपकी। सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर्स होते हैं वो 15 से 35 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और सबसे बड़े डिसाइडर जो होते हैं वो यही कंज्यूमर होते हैं। तो एज अफेक्ट करती है आपके बिहेवियर को। एजुकेशंस, कि आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेस एजुकेटेड हैं, इलिटरेट पीपल हैं, ये चीज़ें भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। रोल एंड स्टेटस, कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आपकी जो बिलोंगिंगनेस है आपके परिवार के साथ, दूसरे पर्सन्स के साथ, वो कैसी है, वो भी कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ये कुछ फैक्टर्स थे, या आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स, जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इसमें एक और टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। बिफोर गोइंग टू परचेज ए प्रोडक्ट, you firstly recognize, or you can say identify the need of the consumers. सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ज़रूरत क्या है। कुछ बेसिक थिंग्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। सबसे पहले कोई भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए डिसीजन लेता है, और उसके बाद और जो आइटम्स हैं जो कंफर्ट के लिए हैं या आपके इंजॉयमेंट के लिए हैं, उसके बाद कस्टमर उन चीज़ों को परचेज करने के लिए डिसाइड करता है। हंगर, थर्स्ट, स्लीप, दीज आर सम बेसिक नीड्स, और यू कैन से फिजियोलॉजिकल नीड्स विच एवरी पर्सन ट्राई टू सेटिस्फाई दीज थिंग्स। सेकेंड वन, इंफॉर्मेशन सर्च, जिसके अंदर हम सभी तरह की
इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे वन बाय वन, चाहे वो आपके इंटरनल सोर्सेज हैं या आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। उन चीज़ों को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। इंटरनल सर्च के अंदर हर इंडिविजुअल्स की एक अपनी मेमोरी है कि उसने किसी भी चीज़ों के लिए क्या समझते हैं, वो क्या नॉलेज रखते हैं, वो सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। और एक्सटर्नल सर्च के अंदर हम बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप अपने फैमिली मेम्बर्स की बातें करें, नेबरर्स की बातें करें, या फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स और ओपिनियन लीडर आल्सो, जिनसे हम प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते हैं और उनसे हम इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करते हैं। और इनके अलावा बहुत सारे कॉमर्शियल जो एडवर्टाइजिंग सोर्सेज हैं, चाहे वो मास मीडिया की बातें करें, पैकेजिंग, विंडो ड्रेसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके इंफॉर्मेशन को सर्च करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। पहली जो स्टेज थी इंफॉर्मेशन सर्च की, उसके अंदर हमने डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं। अब उन इंफॉर्मेशंस को आप इवैल्यूएट करेंगे कि आपने इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ आइटम्स के बारे में डिसाइड किया है कि हम किन किन आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। अब उनके बारे में आपने कंपैरिजन करना है, उनको इवैल्यूएट करना है कि आपकी नीड्स और डिज़ायर के अकॉर्डिंग कौन सी जो गुड्स हैं, कौन सी जो कमोडिटी हैं वो सूट करती हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपकी मेरिट है, डीमेरिट है या डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन सभी को आप वन बाय वन इवैल्यूएट करते हैं, आप कंपेयर करते हैं। चाहे वो प्राइस की बातें हैं कि आपकी जो आइटम है इस मॉडल की जो प्राइस है वो कम है, दूसरे मॉडल की ज़्यादा है, तो ये एक क्राइटेरिया होता है जब हम कोई भी गुड्स को या किसी भी आइटम को परचेज़ करने का डिसीजन लेते हैं। चाहे मॉडल की बातें करें, यदि हम गाड़ी या व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं, स्पोर्ट की बातें करें, रिपेयर रिकॉर्ड है कि जो मेंटेनेंस है वो आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, वारंटी वगैरह है, रिलायबिलिटी की बातें करें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इवैल्यूएशंस के टाइम में अल्टरनेट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनको इवैल्यूएट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद परचेज डिसीजन आता है कि अब फाइनली आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ द अवेलेबल अल्टरनेट you have to be decide what things you are purchase. So in this stage the three things basically consider while you taking a purchase decision। जैसे सोशल फैक्टर्स की बातें करते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जो हर तरह के डिसीजंस के साथ अटैच होते हैं। सोशल फैक्टर्स में हम फैमिली का एटीट्यूड्स क्या है, फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, रिलेटिव्स का क्या ओपिनियन है, रेफरेंस ग्रुप है, इन सब चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं जब हम किसी भी गुड्स के बारे में फाइनल डिसीजन लेते हैं। सिचुएशंस फैक्टर्स में जो डायरेक्टली कंसर्न है किसी भी आइटम्स से रिगार्डिंग, जैसे प्राइस है प्रोडक्ट की, अवेलेबिलिटी है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है कि जो गुड्स है वो आपके नियर बाय अवेलेबल है या नहीं है, डीलर है या शॉपकीपर है, उसके साथ आपकी टर्म्स कैसी हैं, और फाइनली आपकी फैमिली इनकम कैसी है। यदि फैमिली इनकम आपकी ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स ये आपके परचेज डिसीजन को अफेक्ट करेगा। और रिस्क फैक्टर है बच्चों, हाई प्राइस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है, और जो टेक्निकल या जिनके अंदर इस तरह की कोई फीचर होती है, चाहे मोबाइल फ़ोन्स की बातें करें या और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बातें करें, तो उन चीज़ों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी से उनके मॉडल, उनके वर्जन, वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो परचेज डिसीजंस के अंदर हम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कंसीडर करते हैं।
परचेज बिहेवियर ऑफ द कस्टमर कि मोटिवेशन इज द इनर अर्ज विच प्रोपेल्स पीपल्स टू एक्ट। चीज़ों को देखकर, सुनकर, समझकर, ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपकी नीड्स को, डिज़ायर्स को इवोक करती हैं, जिससे आप कोई डिसीज़न लेते हैं। उसके बाद आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर आता है कि फाइनली जब आपने एक बार प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या है। क्या प्रोडक्ट हमने जिस नीड्स को, जिन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए परचेज़ किया था, क्या वो वाकई हुआ या ऐसा नहीं हुआ। तो ये आपका फीडबैक का टाइम है कि जो भी परचेज़ डिसीज़न आपने लिया और फाइनली आपने परचेज़ किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। यदि आपको ये लगता है कि जो डिसीज़न मैंने लिया वो राइट डिसीज़न था उस गुड्स को परचेज़ करने का, तो ऑफ कोर्स इस तरह का डिसीज़न आप रिपीट करना चाहेंगे नियर फ्यूचर में। जब कोई भी प्रोडक्ट आप बाज़ार में नेक्स्ट टाइम परचेज़ करेंगे तो ये चांस है कि आप उसी प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आपने पहले परचेज़ किया था, उसको रिपीट करेंगे। और यदि आपका डिसीज़न किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में या आपकी नीड्स को, आपकी रिक्वायरमेंट्स को उसने फुलफ़िल नहीं किया है तो हम इस तरह के प्रोडक्ट को भविष्य में डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे और हम उसको परचेज़ नहीं करेंगे। ये जो स्टेजेस हैं ये किसी भी कंज्यूमर्स की हो सकती हैं, चाहे वो आप नेसेसिटी गुड्स की बातें करें या आप लग्जरी या आप महंगी जो या ड्यूरेबल्स जो आइटम्स हैं उनको परचेज़ करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह की बेसिक जो प्रोसेस है, हर तरह का बायर, चाहे वो रूरल कंज्यूमर हो, अर्बन कंज्यूमर हो, सभी तरह के कंज्यूमर्स इस तरह की प्रोसेस को फॉलो करते हैं और वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि वो गुड्स वो परचेज़ करें जो उनकी ज़रूरत की गुड्स हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आज हम इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की गई है कि वो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए। और ये रूरल मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक को हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे थे और जिसके अंदर ये सभी चीज़ें, चाहे वो कंज्यूमर बिहेवियर की बातें कर रहे थे, चाहे डिटर्मिनेंट्स की बातें कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, और लास्ट में जो हम कर रहे थे कि प्रोसेस कंज्यूमर बिहेवियर की क्या होनी चाहिए और फाइनली वो अपना डिसीजन लेते हैं कि वो कौन सी गुड्स परचेज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अपने इस टॉपिक में कंसीडर करने की कोशिश की गई। और मैं ये समझता हूँ कि सभी बच्चों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसी तरह आप हमारे वीडियोस जो आज स्टार्ट किया है, इस तरह के वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहेंगे। सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस तरह के वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें और इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें लाइफ में भी। जब आप एक्चुअल में शॉपिंग करने जाते हैं बाज़ार के अंदर तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप कंसीडर ज़रूर करेंगे कि भविष्य में इस तरह के डिसीजन लेने में, क्योंकि जो बुक्स है रूरल मार्केटिंग वो आपकी प्रैक्टिकल बुक है बच्चों। इस तरह के जो टॉपिक्स जो आपको बताए जा रहे हैं वो आपको आपके डिसीजन, जो रियल में आप डिसीजन लेंगे, उनको लेने में भी आपको हेल्प करेंगी। इन बातों के साथ मैं अपनी
बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और आगे आप वीडियो देखते रहें। गुड लक, गुड डे।